peer group also, your classmates. Okay, but so good morning to all of you, and we are starting with the topic algae habits and habitats. So here I am showing you 3 pictures. मैंने कल भी आपको बताया था. ठीक है. First picture is of class Chlorophyceae, which is commonly known as green algae. And why it is known as green algae, that you have also told me yesterday, because of the presence of the pigment, chlorophyll pigment in them. So since the chlorophyll pigment is present in this algae, this means it is autotrophic in nature. But I have already described you so many times that not only chlorophyll is responsible for photosynthesis, there are some of the another type of accessory pigments that are present that are responsible for photosynthesis too. So here we are also going to study about 2 more classes of algae, class Rhodophyceae, which is the advanced or the 3rd class of algae, and it is red in color because of the presence of a red color pigment, which is somewhat equivalent to chlorophyll pigment only, and it is phycoerythrin. And full name is Rhodophyceae, Phycean phycoerythrin. It is mentioned in your book. और इसके अलावा देखो Phaeophyceae is a brown color algae, and the chief pigment which is present in this Phaeophyceae, it is a brown color pigment which is known as xanthophyll. ठीक है बेटा. फ्यूकाजैंथिन इसके अंदर जो है वो मेन होता है. तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल भी है पेज नंबर 33 पे, जहाँ पे ब्रीफ में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स जो है वो बताए हुए हैं. ओके बेटा. So that you go through this. Fucaxanthin is the main pigment that is associated with the class Phaeophyceae, and it is the class of brown algae. So Rhodophyceae and class Phaeophyceae के जो members हैं, they are chiefly marine in nature. ठीक है. They are generally found in ocean conditions, whereas the Chlorophyceae members, they are found in fresh water as well as in marine water too. So here I have written some of the points. I want to elaborate them. So habitat and habitat about this algae that I have already discussed with you. These are associated with the general features. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थैलस लाइक बॉडी होती है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, बोथ टाइप ऑफ हैबिटेट्स दे आर फाउंड. ठीक है. बिसाइड दिस दे आर आल्सो ग्रोइंग ऑन मॉइस्चर रिच कंडीशन, स्टोन पे, सॉइल पे, वुड पे. समटाइम्स दे लिव्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकन्स के फॉर्म में. And sometimes if we are talking about their form and size, so they may be present in the form of a single unicellular cell. Sometimes colonies of algae are there and filaments are also there. ठीक है. कई बार algae जो है वो बहुत ही huge होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं. They seems like a massive plants, then we call them as scales. Okay, but regarding their reproduction, so all the 3 types of reproduction are there: vegetative, then asexual and sexual type of reproduction. So you must remember vegetative reproduction by the method of fragmentation, and asexual reproduction by the formation of both type of spores, motile as well as non-motile. So motile spores, they are generally the zoospores. Here the presence of flagella is there, and non-motile spores are of various types. ठीक है. कई तरह के non-motile spores हो सकते हैं. Regarding their sexual reproduction, so all the types of sexual reproduction is there: isogamy, anisogamy and oogamy. तो वो मैंने आपको बता दिया था कि isogamy, anisogamy and oogamy में difference जो है that is on the basis of the size of the gametes. Okay बेटे. तो size of the gametes के according इसमें variations आपको देखने को मिलती हैं. So if both the gametes, that is the male and the female gamete, they are of the equal size, so condition is isogamy. If male gamete is smaller, female gamete is larger in size, the condition is anisogamy. And third one is oogamy. So you must remember in case of oogamy, ठीक है, male gamete is smaller in size and female gamete is non-static, stationary होता है, and stationary होने के साथ साथ उसमें egg cell जो है वो present होता है. तो non-motile female gamete होता है oogamy के केस में. ठीक है बेटे. ये पिक्चर्स मैंने कल भी आपको शो की थी. तो दिस इज द wallbox algae, which is a member of class Chlorophyceae. This is Ectocarpus algae, which is a member of the class Phaeophyceae or brown algae. And third one is Polysiphonia algae, और ये Rhodophyceae का member है. ठीक है. तो हमेशा याद रखिए कि Rhodophycean algae जो है वो काफी एडवांस टाइप ऑफ algae होती है, और जब आप सी के अंदर डाइव करते हैं तो आपको ये एल्गी जो है वो ऐसे नजर आती है जैसे कि सी के अंदर ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं.
ठीक है, तो ये एडवांस टाइप की एल्गी होती है। तीनों के पिगमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लास क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? फ्यूकाज़ैंथिन। एंड रोडोफाइसी में रोडोफाइसियन फाइकोएरिथ्रेट। Okay, beta, this is all about sexual reproduction. I have already explained you. You must have to remember the example. Ulothrix and Spirogyra is the example of isogamy. Then Eudorina is the example of anisogamy. And among the oogamy, we have Volvox and Fucus. Okay, beta, economic importance भी हम discuss कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं करेंगे. Now I am proceeding with the main topic, that is class chlorophyll. ठीक है, as I have already described you, the members of the class Chlorophyceae, they are known as green algae and they have thallus-like body. तो see in the picture 1, ठीक है, thallus-like body आपको इस तरह की नजर आती है. You are not able to find out the true leaves, stems or roots. अगर इस thallus-like body को आप देखें तो इसके अंदर कहीं पे भी आप root, stems और leaves नहीं बता सकते. सारी के सारी चीजें एक जैसी आपको नजर आती है. So sometimes the unicellular forms are there and sometimes the multicellular, advanced, colonial or filamentous forms are there. So in picture number 2, I am showing you here the Volvox algae. So most of the Volvox algae, they live in the form of colony. Okay, colonial cells are there in case of Volvox algae. And third one is the special type of Chlorophycean members which have filament-like body. तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लगता है जैसे कि कोई ट्री है और उसकी ब्रांचेस हैं, तो फिलामेंट्स के फॉर्म में भी हमें क्लोरोफाइसियन एल्गी के मेंबर्स नजर आते हैं. ओके बेटे, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रीन एल्गी इट इज नोन एज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट. देन यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटियस फॉर्म्स आर देयर. ठीक है, व्हिच इज ग्रीन पिगमेंट. तो कहते हैं कि कलर इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट एंड द डोमिनेंट पिगमेंट्स दैट आर ग्रीन इन कलर आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेंगे. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आर द चीफ chlorophyll pigments found in case of green algae responsible for their grass green color. Okay, beta, so these pigments they are present in special type of cell organelles which are known as chloroplast. So different shape chloroplasts are present. So there are variety of shapes of chloroplast. It may be discoid shape, it may be in the form of reticulate shape, plate-like shape, cup shape, spiral or ribbon shaped chloroplasts are there. And you have learned in class 10th ribbon shaped chloroplast is found in case of algae Spirogyra. ठीक है बेटे, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी आपको नजर आते हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आते हैं. तो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे नजर आते हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट को स्टोर करके रखते हैं. Then another thing is कि most of the members of this algae they have storage bodies. ठीक बेटे, इसको स्टोरेज बॉडीज इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कुछ स्टोर करके रखते हैं. क्या स्टोर करेंगे? वही स्टोर करेंगे जो एल्गी फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे हैव स्टोरेज बॉडीज एंड दे आर नोन एज पेरिनोइड्स एंड दीस पेरिनोइड्स दे आर लोकेटेड इन देयर क्लोरोप्लास्ट. Okay, and what is the function of these perinoids? So these perinoids they store different type of photosynthates which are produced as a result of photosynthesis. It may be in the form of proteins, oil droplets या starch. ठीक है, डिपेंड करता है कि एल्गी ने क्या प्रोड्यूस किया है. अगर उसने प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए हैं तो पेरिनोइड्स में प्रोटीन्स होंगे. अदरवाइज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर आल्सो देयर एंड समटाइम द स्टार्च इज आल्सो देयर. Okay, बेटे, another thing is if we are talking about their cell wall, तो इनकी जो cell wall है, ठीक है, it is made up of two type of chemicals. The inner layer of the cell wall is made up of cellulose, ठीक, जैसे plants के अंदर होती है, and outer layer जो है it is made up of pactose. तो pactose और cellulose जो है इसके अंदर जो है cell wall composition में present होते हैं. ओके बेटे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द सिंपल मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन ओनली. सो द थैलस ऑफ द एल्गी दैट डिवाइड्स इनटू सो मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स दे लेटर फॉर्म द एंटायर बॉडी ऑफ द एल्गी. देन अदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. तो अलग-अलग तरह के स्पोर्स भी जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं. ओके बेटे, asexual reproduction की अगर हम बात करें तो asexual reproduction it takes place by flagellated zoospores. If I am saying flagellated zoospores, this means
The zoospores, they are motile. They have their own locomotory organ and which are flagella here. ठीक है, तो these flagellated zoospores, they are found in eusporangia. ये eusporangia के अंदर जो है फॉर्म होते हैं flagellated zoospores. ठीक बेटे, उसके बाद वो कहता है कि another thing is कि sexual reproduction कितने तरह की है, तो here the sexual reproduction is all of the 3 types. It may be isogamous, anisogamous and oogamous. ठीक है, सभी का डिफरेंस आपको मालूम है. If both the male and the female gamete are of equal size, then the sexual reproduction is of isogamous type. If male gamete is smaller in size and female gamete is somewhat larger in size and non-motile, then an isogamy condition is there. And third thing is oogamy. So here the male gamete is smaller in size and a motile one. And female gamete, if it is larger in size, it is static, it cannot move. Non-motile type of female gamete is there, and egg cell is present in the female gamete. Okay बेटे, एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कर लेंगे. एग्जाम्पल्स में क्लमाइडोमोनास एल्गी आ जाती है, विच इज अ कप शेप. ऐसी एल्गी होती है जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक बेटे, वॉलवॉक्स एल्गी आ जाती है, तो वॉलवॉक्स एल्गी जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यूलोथ्रिक्स एल्गी थोड़ी सी एडवांस होती है. ठीक है, इसके अलावा स्पायरोगैरा एल्गी आ जाती है. यू हैव ड्रॉ स्पायरोगैरा, ठीक है, अर्लियर इन 10th क्लास आल्सो. एंड देन देयर इज एडवांस टाइप ऑफ क्लोरोफाइसियन मेंबर एंड दैट इज कारा एल्गी. ठीक है, इसको कारा भी बोल सकते हैं, चारा भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से. ओके स्टूडेंट, हियर आई हैव शोन यू अनदर क्लास ऑफ एल्गी. अगर आपने ये सारी एल्गीज की पिक्चर्स देखनी है तो यू गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च फॉर दैट. ठीक बेटे, तो आपको क्लमाइडोमोनास एल्गी आपकी बुक में भी ड्रॉ की होगी उसने, तो यू गो थ्रू दैट पिक्चर. ऑन पेज नंबर 31 पे देखिए, आपको सेकंड पिक्चर जो है वो क्लमाइडोमोनास एल्गी की नजर आ रही है. एंड उसके पहले जो A1 है, दैट इज द पिक्चर ऑफ वॉलवॉक्स एल्गी. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर नंबर 3.1 जहाँ पे एल्गी लिखा है. उसके बाद कारा एल्गी जो है वो स्मॉल प्लांट की तरह आपको नजर आती है, उसमें ब्रांचेस सब कुछ जो है वो अच्छे से नजर आती हैं. ठीक बेटे, ऑल ऑफ दीज 3 members they are of the Chlorophyceae algae. So no need to repeat it again because I am going to send you the presentation later on. You go through this. I am starting with the next one. The next class is class Phaeophyceae. Okay bete, so class Phaeophyceae commonly known as the brown algae. तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, सभी बच्चों को लर्न हो गया है. द नेम ऑफ द पिगमेंट इज फ्यूकाज़ैंथिन. ठीक बेटे, तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर इज विजिबल हियर. आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो नजर आते हैं. तो देखो इस तरह से आपको ये एल्गी जो है वो नजर आएगी, Phaeophyceae एल्गी. तो यहाँ पे मैंने आपको एक्टोकार्पस एल्गी जो एग्जांपल है Phaeophyceae का, उसके डिफरेंट पिक्चर्स आई एम शोइंग यू. सो यहाँ पे देखिए थर्ड पिक्चर के अंदर आपको जो है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नजर आ रहे हैं, फिलामेंटियस फॉर्म्स होती हैं. तो जनरली कहते हैं कि ये मैरीन एल्गी होती है, तो इट इज मोस्टली फाउंड इन ओशंस और सी. ठीक है, मैरीन हैबिटेट दे आर एंजॉयिंग. एंड रिगार्डिंग द साइज एंड फॉर्म, तो देयर आर वेरिएंट टाइप ऑफ साइजेस प्रेजेंट एंड फॉर्म्स प्रेजेंट इन दिस एल्गी. तो समटाइम्स द एल्गीज आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ब्रांचेस. ठीक है, समटाइम्स दे हैव बिगर फिलामेंटियस फॉर्म, बड़े बड़े फिलामेंट होते हैं इसके, और कई बार बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड. तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स ऑफ Phaeophyceae algae they are known as scalps. इनको कैल्प्स बोला जाता है. आपको ऐसा लगता है जैसे सी के अंदर ना ट्रीज प्रेजेंट हैं ब्राउन कलर के, तो वो एक्चुअली एल्गी होते हैं, Phaeophyceae algae होते हैं, उनको कैल्प्स बोला जाता है. और कहते हैं कि इनकी हाइट काफी ज्यादा हो सकती है. दे कैन इवन रीच अ हाइट ऑफ 100 meters. ओके बेटे, then if we are want to know about the pigments present, so here chlorophyll A is already present, but in addition to chlorophyll A, chlorophyll C is also there and carotenoids are also present. ठीक है बेटे, and various forms of xanthophylls. तो फ्यूकाज़ैंथिन जो है वो xanthophylls की ही फॉर्म है. तो आपने याद रखना है कि इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और xanthophylls प्रेजेंट है. अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर वेरिएशंस इसमें देखी जाती हैं, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन. ठीक है, ऑलिव ग्रीन कलर से लेके ब्राउन के डिफरेंट शेड्स हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द xanthophylls पिगमेंट. और फ्यूकाज़ैंथिन प्रेजेंट इन दैट.
If the amount of the fucus, xanthine or xanthophyll is more, this means dark brown color is there. अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो उस केस में ब्राउन कलर के शेड्स आपको नजर आएंगे. अगर क्वांटिटी कम है तो आपको ऑलिव ग्रीन से लेकर अदर कलर्स जो हैं ग्रीन के नजर आएंगे. ओके बेटे, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी टू फॉर्म्स की फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर होता है, लैमिनारिन एंड मैनिटोल. तो दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन. आपसे पूछ लिया जाएगा कि in which form the food is stored in the members of class Phaeophyceae. Then you must remember laminarin and mannitol. इससे पहले मैंने आपको बताया था in case of class Chlorophyceae, food is stored in the form of starch, oil or proteins. And in class Phaeophyceae, it is stored in the form of laminarin and mannitol. Okay बेटे, next is vegetative cells की cell wall की बात करें तो cellulose से बनी हुई होती है, और कहते हैं कि हर एक सेल जो है उसके आसपास there is a gelatinous coating, gel like coating is there and that coating is of algin. ठीक है, ये एल्जिन से बनी हुई कोटिंग जो है वो सेल्स को सराउंड करके रखती है, पर हर एक सेल की अपनी सेल वॉल है which is made up of cellulose. Another is protoplast. So protoplast जो है इसके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है and it also have a centrally located vacuole and all the other cell organelles that is generally expected in a cell. ठीक है, plastids, nucleus, vacuoles सब कुछ इसमें प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद देखो, इफ द एल्गी इज अ ह्यूज वन, अगर ब्राउन एल्गी जो है वो कैल्स के फॉर्म में है तो इन दैट केस, ठीक है, तो प्लांट बॉडी जो है एल्गी की जो बॉडी है, इट इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम. इट इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ a root like structure. I am not saying that these are the roots. I am saying it is a root like structure which is known as hold fast. ठीक है, उसके अलावा इसमें एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो इसका स्टॉक होता है, इसको स्टाइप बोला जाता है, और इसमें लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको फ्रंट बोला जाता है. तो आप फिगर नंबर 30 पेज नंबर 31 पर फिगर नंबर 3.1 जो है उसमें डायग्राम B1, B2 एंड B3 देखिए. वहां पे आपको जो है B3 डायग्राम के अंदर फ्रंट, स्टाइप्स एंड होल्ड फास्ट जो है वो बेटा नजर आ रहा है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी मैरीन Phaeophyceae एल्गी जो है उनको कैल्प्स बोला जाता है, and these calves have root like structures by which they attach themselves with the substratum and it is known as hold fast. Then stem like or stalk like structures are there which are known as stipe, and leaf like photosynthetic organs are also there and their bigger leaves are known as front. तो तीनों चीजें यहाँ पे याद रखेंगे, hold fast, then stipe and then front. ओके बेटे, तो उसके बाद कहते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन. So again the body of the thallus divide into so many fragments and each fragment produce the entire body of the algae. And sexual reproduction, so sexual reproduction here takes place by biflagellate zoospores. यहाँ पे 2 flagella वाले zoospores present होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 2 फ्लैजिला वाले जो zoospores हैं उससे जो है इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होती है. देखो पॉइंट नंबर 2 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक बेटे, बाइफ्लैजिलेटेड zoospores फॉर्म होते हैं, मैंने वहां सेक्सुअल लिख दिया, आप करेक्शन कर लेंगे पॉइंट नंबर 2 में. इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय बाइफ्लैजिलेटेड zoospores एंड दीस zoospores आर पेयर शेप. ठीक है, पेयर शेप zoospores होते हैं एंड बोथ द फ्लैजिला दे आर लेटरली अटैच्ड टू फ्लैजिला, सो दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द topmost position and the end position जिसको हम anterior और posterior position कहते हैं. Instead of that they are present at the lateral position, so they are the biflagellated pear shaped zoospores, motile one. Okay, then regarding their sexual reproduction, so sexual reproduction is of 3 types: isogamy, isogamy and oogamy. I'm not going to explain it again because now it is very much comprehended to you. Okay beta, union of the gametes takes place. So where this union of gamete takes place, तो fusion of gamete it takes place in water. तो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो वाटर में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. मैंने आपको बताया था कि मोस्टली मेल गैमेट्स आर द मोटाइल वन and female gametes are generally stationary. So this means male gamete they swim through water
they come in contact with the female gamete, they fuse with the female gamete and zygote is formed. Okay students, तो oogonia जो है जिस उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एग सेल प्रेजेंट होते हैं oogamete के केस में, तो मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ओके बेटे, गैमेट्स जो है वो भी पेयर शेप होते हैं ज़ूस्पोर्स की तरह, ठीक, और उसमें भी लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। So if you want to give the example, then you must remember the brown algae के example जो है उसमें एक्टोकार्पस आ जाएगा, डिक्योटा is the brown algae, ठीक है, लैमिनेरिया algae and sargassum algae is also there, ठीक है, फ्यूकस is also there। तो एक सी है जिसके अंदर काफी बड़े बड़े sargassum algae जो है उसके वहां पर जो है प्लांट्स प्रेजेंट हैं, तो सी को सारगासो सी के नेम से जाना जाता है, ठीक बेटे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैरीन एल्गी जो है उसमें फियोफाइसियन एल्गी आ जाती है जो ब्राउन एल्गी होती है। ओके बेटे, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास रॉडोफाइसी। सो थर्ड क्लास ऑफ द एल्गी इज क्लास रॉडोफाइसी। सो इट इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, ठीक है, जैसे रेड कलर की इंक होती है ना वैसा इसका कलर होता है रेड एल्गी का। तो मोस्टली इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। द पिगमेंट प्रेजेंट इज रॉडोफाइसियन phycoerythrin, so it is somewhat giving a color of the red ink, ठीक है बेटे। तो मोस्टली मेंबर जो है इसके मैरीन होते हैं और हमेशा ओशंस के अंदर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलेंगे, एंड ओशंस में भी आपको वार्म वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है, यानी शैलो जोन्स जो होती हैं सी की वहां पे ये एल्गी हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है, ऐसे रीजन्स में मिलती है जहाँ पे लाइट काफी ज्यादा आती है। तो आपको पता है कि सी जो है उसमें कितने सारे फ्लोर प्रेजेंट हैं, पर सी का जो शैलो फ्लोर होता है वहां पे लाइट पेनिट्रेट करती है, वहां ये एल्गी प्रेजेंट होती है। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द पिगमेंट दैट इज स्मॉल आर फाइकोएरिथ्रिन मींस रॉडोफाइसियन फाइकोएरिथ्रिन। ओके बेटे, तो वार्मर एरियाज में मोस्टली पाई जाती है, लाइट रीजन्स में मोस्टली पाई जाती है ये एल्गी। इवन इट इज आल्सो फाउंड इन द ग्रेटर डेप्थ्स इन द ओशंस, ठीक है, वहां पे जहाँ पे कि बहुत लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है वहां पे भी वो कहते हैं कि ये एल्गी जो है वो हमें नजर आती है, ठीक है। तो डीप ओशंस फ्लोर जो होते हैं वो मोस्टली डार्कनेस होती है वहां पे बिकॉज वेरी लिटिल लाइट इट पेनिट्रेट्स। सो दीज मेंबर्स दे आर वेरी मच अडेप्टेड टू नॉन लाइटेड रीजन्स टू, दे आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, ठीक है, ओशंस के अंदर भी जो है ये प्रेजेंट होती है। फिर कहते हैं कि बिकॉज दे आर द एडवांस्ड टाइप ऑफ एल्गी दिस मींस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द मल्टीसेलुलर, ठीक है, एडवांस्ड मल्टीसेलुलर मेंबर्स दे कम्स अंडर क्लास रॉडोफाइसी and they also have complex type of body organization, they are not the simplest type of organisms, ये complex type of organisms हैं। उसके बाद देखो बेटे फूड कैसे स्टोर होता है, तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो देखो तीनों को रिलेट करो, ग्रीन एल्गी में ऑयल, प्रोटीन्स एंड स्टार्च था, ब्राउन एल्गी के केस में मैंने आपको बताया था लैमिनारिन एंड मैनिटोल था, एंड इन केस ऑफ रॉडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च इज देयर। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज अ काइंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका कि स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही होता है। ओके बेटे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन ओनली, फ्रैगमेंटेशन जो मेथड है उससे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स के जरिए होती है, पर स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते। So these are the non-motile spores. So this means the both male and the female spore they come in contact with each other by merely swimming through water only. Okay, so sexual reproduction. So sexual reproduction is again by the formation of gametes, but these gametes are the non-motile gametes. ठीक बेटे, तो ये non-motile gametes होती हैं। Sexual reproduction इसमें सबसे ज्यादा advanced type की होती है, and that is oogamous type. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर द नॉन मोटाइल टाइप ऑफ गैमेट एंड दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर बाय स्विमिंग थ्रू वाटर। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास रॉडोफाइसी इज कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंटल स्टेजेस आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ना तो उसके बाद एम्ब्रियो जैसे स्टेजेस भी इसके अंदर देखी गई हैं, जबकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो हायर प्लांट से रिलेटेड है। पर ये माना जाता है कि ये सबसे एडवांस टाइप की एल्गी है
तो इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स जो है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी देखे गए हैं. ओके बेटे, तो हियर if you want to give the example, so many algae come under this Polysiphonia algae. ठीक है, Polysiphonia algae बिल्कुल जैसे ट्रीज होते हैं ना उस तरह की शेप रखती है. ठीक है, Porphyra algae which is also an edible type of algae too. Gracilaria, Zelidium, ये सारे हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़े हैं. तो ये सारे जो है वो Rhodophycean algae के अंदर आते हैं. तो समटाइम व्हेन यू, मैंने आपको बताया था, व्हेन यू गो आउटसाइड, ठीक है, एंड सेट इन अ होटल, अ बिग होटल, एंड यू डिमांड फॉर सी फूड, ठीक है, तो आप बड़े जो है सी फूड की डिमांड करते हैं, तो उस समय आपको प्लेट में जो सर्व किया जाता है ना वो ये एल्गीज होती है. ठीक है, और आप एल्गीज खा रहे होते हैं बड़े मजे से. तो ये सारी जो एल्गीज हैं, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, ये सारी एडिबल होती हैं, हाईली प्रोटीनेशियस होती हैं. ओके बेटे, सो दिस कंप्लीट्स the account that is related with algae. But there is one small table given on page number 33, table number 3.1. तो अगर आप उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, दिस मीन्स आपको एक ब्रीफ में पता लग जाएगा पूरी तीनों क्लासेस के बारे में, एंड यू कैन इजीली राइट. ठीक है, तो जब भी आपने whenever you are going to study all the 3 classes, compare the characteristic of each class with other. So it is better that you make your own chart और कॉलम, और उसमें तीनों हेडिंग्स लिख लें, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फ्लोरोफाइसी, या तीनों के कैरेक्टर्स कंपेयर करके आप लर्न करें. तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू ग्रास्प द कांसेप्ट. ओके बेटे, सो आज मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी ब्रायोफाइट्स के बारे में. सो आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट वन अंडर किंगडम प्लांटी. ठीक है, डिवीजन 1 जो था उसके अंदर हमने एल्गीज के बारे में स्टडी किया था. दिस इज डिवीजन 2, एंड डिवीजन 2 इज ब्रायोफाइटा, जिसको कॉमनली आप ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं. ओके बेटे, सो वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेम्बर, देखो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है एल्गीज एंड ब्रायोफाइट्स में. ठीक बेटे, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आल्सो हैव द थैलस लाइक बॉडी, उनकी भी थैलस लाइक बॉडी होती है, बट हियर द थैलस इज अ लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड. ठीक है, यहाँ पे थैलस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया. तो इफ यू सी दिस पिक्चर्स, then you can easily find कि आपको कुछ branch like, leaf like, stem like, root like structure नजर आ रही है. ठीक है, तो यहाँ देखो पिक्चर नंबर 4 के अंदर आपको कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं जो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज हो सकती हैं. यहाँ पे देखिए एल्गीज के ऊपर आपको कप लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनको हम गैमा कप्स कहते हैं. ओके बेटे, तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखाई हैं. तो यहाँ पे जो गैमा कप्स आपको नजर आ रहे हैं ना एल्गी के ऊपर, ये एल्गी मार्केंशिया एल्गी है. ओके, सो दीज आर द अदर फॉर्म्स ऑफ, नहीं ब्रायोफाइट में आ जाएगी. ठीक है, एल्गी की तरह इसमें थैलस होता है पर थोड़े से डिफरेंशिएटेड है. ये माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं देयर एंसेस्टर्स आर दिस एल्गीज. एल्गीज जो हैं वही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन किसमें डेवलप हुई हैं, ब्रायोफाइट्स में डेवलप हुई हैं. तो इतना याद रखेंगे कि थैलस इज अ लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड, and here you are easily find out the root like, stem like, leaf like organ. Okay, I am using the word like, this means they are not the true root, stem and leaves. हमने सिर्फ उनका स्ट्रक्चर वैसा हमें लग रहा है इसलिए हमने उनको रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक बोला है. ओके बेटे, तो 2 जो है क्लासेस आ जाती हैं ब्रायोफाइटा के अंदर. तो इसमें मॉसेस भी आ जाती हैं और लीवर वॉट्स भी आ जाते हैं. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर देयर. One are mosses and another are liverworts. तो देखो liverworts जो है उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होते हैं, पर जो mosses हैं वो थोड़े से थैलस लाइक होते हैं. ओके स्टूडेंट, where you are able to find these bryophytes, so you most probably find these bryophytes in moist shady areas of the hills. ठीक है, तो sometimes when you visit a hill station or a mountain, if some stream or some river is flowing nearby that hill or mountain, ठीक है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि आप किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं, वहां पे हिल्स के ऊपर आपने इस तरह की ग्रीन कलर की कोटिंग देखी है. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे प्लांट्स आपको हिल के ऊपर डीपली एम्बेडेड नजर आते हैं, या फिर इफ देयर आर सम ऑफ द रॉक्स दैट आर लाइंग नियर द रिवर बैंक and you have observed these rocks, so small green outgrowth is there on the rocks. When you try to push them, they are not able to push.
ठीक है, जब आप उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं इन प्लांट्स को रॉक्स में से अलग कर दूं, तो वो अलग नहीं होते, वो काफी अंदर तक गए हुए होते हैं। तो ये एक्चुअली ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो अब जब भी आप हिल्स को विजिट करेंगे, आप ध्यान देंगे वहां पे कि रॉक्स के ऊपर आपको ब्रायोफाइट नजर आ सकते हैं। माउंटेन्स या हिल्स जो है उनके ऊपर भी ब्रायोफाइट्स आपको नजर आ जाते हैं। इस तरह के होंगे, देखो, तो ये देखिए रॉक्स के ऊपर इस तरह से ये ग्रो करते हैं। ओके बेटे, इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। Why they are known as amphibians? Because they are able to live in soil as well as they also dependent on water for their sexual reproduction stages. ठीक है, तो जिस तरह से हम एम्फीबियन एनिमल्स के बारे में कहते हैं ना कि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाना उनके लिए जरूरी है, तो सिमिलर इज द केस हियर. These bryophytes are actually terrestrial in nature, but for their sexual reproduction stages, they must have to be dependent on water. Okay, बेटे, तो they are generally found in damp places. ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा गीलापन होगा, wet conditions होंगी, humid conditions होंगी, humidity level is very high. And another thing is shaded localities. ठीक है, ऐसे areas where the shade is there, so these plants they are generally found there. And another very important thing is that they are playing an important role in the process of plant succession. So all of you are surprising that what do you mean by the term plant succession? तो देखो plant succession जो है उसका मतलब है कि plants का development कैसे हुआ है। ठीक है बेटे, plants का development कैसे हुआ है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो plant succession जो है वो अलग-अलग plants जो है उनकी evolutionary stages के बारे में बताता है। ठीक है, that how the plants when the evolution of the earth takes place, then how the plants they first time grow on the bare rocks, because you know that you have learned about the big bang theory of the universe ना, तो उसमें आपको ये बताया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स से अलग होकर बनी है। एंड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, अर्थ जो थी वो बहुत ही हॉट थी, एंड उस टाइम पे अर्थ के सरफेस पे बिगर रॉक्स आर देयर, एंड फर्स्ट टाइम व्हेन द वेजिटेशन स्टार्ट, तो उस समय वो कहते हैं कि सबसे पहले जो प्लांट अर्थ जो है उसके बेयर रॉक्स पे देखे गए, सॉइल पे देखे गए, दे आर नोन एज द ब्रायोफाइट्स. ठीक, सो दे आर द बिगनर्स among the vegetation that is generally found on the surface of the primitive earth on the bare rocks. Then I have already explained कि bryophytes they are of two types. They may be liverworts or they may be mosses. तो ये यहाँ पर liverworts हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, mosses हो सकते हैं. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि liverworts की अगर हम बात करें तो most of the liverworts they generally found in moist shady habitats. ठीक है, they are found in generally those habitats जो हमेशा moist रहते हैं, जहाँ पे हमेशा शेड बनी रहती है, वहां पे हमें मिलते हैं. So generally we are able to find these bryophytes or liverworts on the banks of the streams. ठीक है, स्प्रिंग्स, झीलें, झरने वगैरह जो होती हैं वहां पे आपको मिलेंगे. मार्शी ग्राउंड पे मिल सकते हैं आपको, डैम्प सॉइल पे, बार्क्स ऑफ द ट्रीज पे मिल सकते हैं. ठीक है, वुड्स के ऊपर मिल सकते हैं आपको. तो लिवरवर्ट्स जो है, व्हाट अबाउट देयर बॉडी, तो देयर बॉडी इज थैलस लाइक. इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है बेटे, और एग्जांपल इज मार्केंशिया. तो सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस थर्ड पिक्चर इज ऑफ मार्केंशिया. थैलस लाइक बॉडी होती है, और जब इनकी एसेक्सुअल स्टेजेस आती है ना, तो इसके ऊपर इस तरह की कप लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. ओके बेटे, तो उसके अंदर मार्केंशिया आ जाता है. यहाँ पे भी देखो, मैंने पीछे भी आपको मार्केंशिया दिखाया हुआ है. तो मोस्टली मार्केंशिया जो है इसका थैलस कैसा होता है, तो इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड. डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों ही इसकी फ्लैट होती है, and it is attached with the substratum with the help of root like structure. Okay, so though you are not able to push this thallus, हम इस thallus को खींच के निकाल नहीं सकते क्योंकि ये रॉक्स के ऊपर जो है अपने रूट्स की हेल्प से अटैच होता है, तो you cannot pull this thallus. ठीक है, लीफी मेंबर्स और ऑल्सो प्रेजेंट. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें लीफ होंगे, पर लीफ जैसे स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं, और उन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मान लिया है. बिकॉज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ स्टेम, तो यू नो दैट कि स्टेम जो होता है ना उसमें हमेशा नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं. ठीक है, जिससे हम किसी भी स्टेम की पहचान करते हैं. तो कहते हैं कि थैलस जो है उसमें लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड हमने उन स्ट्रक्चर्स को स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स माना है जिनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है.
और जो हमें लीफ लाइक लगे हैं उसको हमने लीफ लाइक अपेंडेजेस में ले लिया है। तो सी दिस पिक्चर, यहाँ पे देखिए आपको लीव्स के अंदर आपको क्या नजर आ रही है, बेन्स नजर आ रही है ना, तो इसको तो हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर मान लिया है। और जहां पे हमें पार्टीशंस नजर आ रही हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, उसको हमने स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मान लिया है, क्योंकि उसको हमने इंटरनोड्स या नोड्स माना है। ओके बेटे, तो जब इनकी सेक्सुअल स्टेजेस आते हैं ना, तो इस तरह से उसके ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है। तो मेल वाला जो है उसको एंथ्रेडियोफोर बोला जाता है, फीमेल को आर्किगोनियोफोर बोला जाता है। उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स डेवलप होते हैं, और एसेक्सुअल स्टेजेस में उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह से। और उसमें एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जिनको गैमे बोला जाता है, और कप्स को गैमा कप बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। तो यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर अप टू